Hello everybody, welcome to Study Room channel. I am Anuradha. Today we are going to learn about 8th class subject science. Unit is living world and classification of microbes. So let's begin. So according to 2011 census, around 87 million species of living organisms are found on the earth including land and sea. और आपको पता है अगर 87 मिलियन स्पेसिस अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना हो such a vast number, it was essential to divide them into groups and subgroups, okay, with their similarities and differences. So this process of dividing living organism into groups and subgroups is called biological classification. So what is the definition of a biological classification, or it is called as the basic classification? So process of dividing living organism into groups and subgroups is called as the biological classification. So before we are going to discuss about the classification, I want to tell you something, a history background. So first one is the scientist Carl Linnaeus in 1735 divided living world into two kingdoms named as Vegetabilia and Animalia. Then second, scientist Haeckel in 1866 considered three kingdoms. Which are they? Protista, plants and Animalia. In 1925, Chaton created two groups. He has not created two kingdoms. He created two groups. First one is the prokaryotes and second one is the eukaryotes. And what is meant by prokaryotes and eukaryotes? We study later. In 1938, Copeland divided living organism into four kingdoms. Which are they? Monera, Protista, plants and animals. So here we discuss about some history of classification of living organism. But most important and accepted classification which is discovered or created by Robert Harding Whittaker was an American ecologist. He is an American ecologist. And in 1969, he divided living organism into 5 groups. Okay. So, he divided living organisms into 5 kingdoms, which is known as 5 kingdom classification, system of classification. So, मेरा ये कहना है कि जो भी विटेकर साइंटिस्ट ने जो भी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो भी देखे हैं, ठीक है ना, तो उनका क्या मतलब कौन से हिसाब से उन्होंने लिया है, क्योंकि इतने सारे साइंटिस्ट आपने देखे हैं कि कार्ल लिनस ने किया, हेगल ने किया एंड चैटॉन ने, कॉपलैंड ने, ठीक है ना, लेकिन इनके सारे एक्सेप्टेड नहीं है. एक्सेप्टेड किसका हुआ है? ऑफ कोर्स विटेकर साइंटिस्ट इनका हुआ है. ठीक है, तो हम फ्लो चार्ट देखेंगे लिविंग, उन्होंने किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया है उसका हम फ्लो चार्ट देखेंगे. नाउ वी आर गोइंग सी फ्लो चार्ट ऑफ अ विटेकर क्लासिफिकेशन. सो हियर इट इज. He divided living organism into two main group. Which are they? One is prokaryotes and second one is eukaryotes. Now, what is meant by prokaryotes? Anyone tell me? कमेंट में देना. अगर आपके पास भी अगर दूसरा एक अदर डेफिनेशन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. सो मेरी डेफिनेशन है कि prokaryotes मीन्स cell organism which do not have a nucleus and of course other membrane organism inside them. मतलब उनके पास ना सेल ऑर्गेनल्स है और ना ही उनके पास न्यूक्लियस भी
प्रेजेंट नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं क्रॉस करूँगी, मतलब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या है, न्यूक्लियस भी नहीं है और अदर सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या है, न्यूक्लियस भी है, सेल ऑर्गेनल्स भी है विद इन अ मेम्ब्रेन, और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स भी प्रेजेंट है और प्लांट्स भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे समझ में आया प्रोकैरियोट्स यानी क्या होता है और यूकैरियोट्स में क्या होता है। तो प्रोकैरियोट्स इन शॉर्ट में बताऊंगी कि जहाँ पे न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है तो उसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और यूकैरियोट्स यानी जिनमें अब्सेंट रहते हैं प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में क्या है, जो प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस ऑल्सो एंड सेल ऑर्गेनल्स ऑल्सो। नाउ हम पहले प्रोकैरियोट्स का देख लेंगे, उसके बाद हम यूकैरियोट्स के बाद उधर जाएंगे। तो इन प्रोकैरियोट्स देर इज यूनिसेल्युलर। नाउ व्हाट इज मीन बाय यूनिसेल्युलर? Unicellular, that means single cell. What is it? Single cell. So single cell, ठीक है, unicellular means single cell organism is called as the unicellular, or single cell it is called unicellular. And multicellular means what? Organism which have one or more cells, it is called multicellular organism. Is this clear? Unicellular and multicellular clear? Unicellular means single cell and multicellular means one or more cells. Okay. Now in unicellular there is one kingdom present, that is called Monera. एंड इन यूकैरियोट्स देर इज, हम यहाँ पे अभी यूनिसेल्युलर का खत्म हो गया प्रोकैरियोट्स का, अभी हम यूकैरियोट्स पे जाते हैं। यूकैरियोट्स में भी दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज़ द यूनिसेल्युलर एंड सेकंड वन इज़ द मल्टीसेल्युलर। नाउ आपको पता है कि क्या है, यूनिसेल्युलर यानी सिंगल और मल्टीसेल्युलर यानी बहुत सारे, वन और मोर। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ये 2 दिखेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन वन और मोर दैट मीन्स सेल्स इट्स कॉल्ड एज अ मल्टीसेलुलर। तो यहाँ पे जो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर में किंगडम सेकेंड प्रोटिस्टा प्रेजेंट है। अब ये मोनेरा में क्या है, प्रोटिस्टा में क्या है, आई विल टेल यू आफ्टर दैट, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको फ्लो चार्ट दिखाया है। तो यहाँ पे मल्टीसेलुलर यहाँ में क्या है, किंगडम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। नाउ किंगडम थर्ड में है फंजाई, किंगडम फोर्थ में है प्लांटी एंड किंगडम 5 में है एनिमेलिया। तो किंगडम 3 फंजाई यानी क्या है कि जिसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट है लेकिन क्लोरोफिल एब्सेंट है, और आपको पता है कि अगर क्लोरोफिल ही नहीं है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे आर हेटरोट्रॉफिक। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय हेटरोट्रॉफिक वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे फिलहाल यही ख्याल में रखना है कि क्लोरोफिल एब्सेंट है, मतलब फोटोसिंथेसिस ये कैरी नहीं करेगा या तो परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट है। प्लांटी ऑफ कोर्स आपको तो पता है कि सेल वॉल भी प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहता है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है इसीलिए ये ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके, किंगडम 5, इन किंगडम 5 देयर इज एनिमेलिया, मतलब हम सेल वॉल भी नहीं है, क्लोरोफिल भी नहीं है, इसीलिए क्या है, हम खुद का फूड जो है हम बना नहीं सकते, और सेल वॉल भी नहीं है। अगर आपने एनिमल सेल का डायग्राम अगर देखा तो उसमें आपको पता चलेगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज, तो मैंने पहले कहा था कि जो भी विटेकर क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट विटेकर ने जो भी किया था तो उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, मतलब क्या उन्होंने सोचकर ये क्लासिफिकेशन किया, ठीक है ना। तो नाउ वी विल सी विच क्राइटेरिया बेसिकली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन, विच क्राइटेरिया ही यूज्ड बेसिकली फॉर क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट वन इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए,
वेदर इट इज़ प्रोकैरियोट्स, वेदर इट इज़ यूकैरियोट्स, मतलब प्रोकैरियोट्स रहना चाहिए या फिर यूकैरियोट्स रहना चाहिए, ठीक है ना, प्रो और यूकैरियोट्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ये किस में आएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी और सेल स्ट्रक्चर। देन सेकेंड वन इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला हो गया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें क्या है, वेदर इट इज यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। ये तो सेल जो है, ये इसमें जो सेल रहेगा जो भी ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है। अब मैंने मल्टीसेल्युलर भी बता दिया, यूनिसेल्युलर भी बता दिया, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में वो आएगा वेदर इट इज़ वन और डबल। नेक्स्ट वन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या हो सकता है, आपको पता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ठीक है, मैं बताती हूँ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रॉफिक, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। सेकेंड वन इज द हेट्रोट्रॉफिक, थर्ड वन इज द सैप्रोफिटिक। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ध्यान में रखो, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय ऑटोट्रॉफ्स? सो ऑटोट्रॉफ्स विच मेक्स देयर ओन फूड मटेरियल। ऑटोट्रॉफ्स यानी, देखो मैंने क्या बता दिया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रॉफिक, second one is the heterotroph and third one is the saprophytic. So first one is the heterotrophs यानी which make their own food material। जो कौन बनाता है खुद का फूड मटेरियल? तो वो है प्लांट्स, है ना। तो कैसे बनाते हैं? उनमें क्या रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, तो इसीलिए वो जो खुद का खाना है वो खुद बना सकते हैं, विच मेक देयर ओन फूड मटेरियल। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक तो उसका ही उल्टा क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक यानी क्या, विच डिपेंड्स ऑन अनदर फॉर फूड मटेरियल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फंजाई, है ना, हम भी आते हैं उसमें हेट्रोट्रॉफ्स में, है ना, विच डिपेंड्स ऑन अनदर फॉर फूड मटेरियल। जब सब्जी लाते हैं, सब्जी बनाकर हम धोकर जैसे बनाकर खाते हैं, मतलब हम दूसरों पे ही डिपेंड हो गए ना, है कि नहीं। तो हम किस में आते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स में। थर्ड है सैप्रोफिटिक, ये आपके लिए नया होगा लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में है अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। सैप्रोफिटिक यानी क्या, विच ग्रोन अप ऑन कार्बनिक मटेरियल और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। जो कचरा कूड़ा होता है ना, उस पर ये ग्रोन होता है। आपने अगर देखा होगा कि कचरे कूड़े के पास या तो फिर एक झाड़ के नीचे जहाँ पे कचरा बहुत रहता है, तो वहाँ पे ऐसे अम्ब्रेला लाइक अ स्ट्रक्चर वहाँ पे ग्रोन अप होता है, राइट। तो वो क्या होता है, वो होता है मशरूम, जो कि क्या होता है, सैप्रोफिटिक, ओके ना। तो अब समझ में आया। अब जैसे कि ब्रेड, बहुत दिन बाद अगर आपने मॉइस्चर रह गया ब्रेड पे, तो ब्रेड अगर हमने निकाला तो वहाँ पे ऐसे वाइटिश वाइटिश आपको दिखाई देंगे कभी कभी। तो वो क्या है, वो भी क्या है, सैप्रोफिटिक में आती है, वो फंजा रहता है। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या है। तो वो उसके बाद में 4 टाइप है, 4 क्राइटेरिया इज द लाइफ स्टाइल। So lifestyle यानी whether it is producers, whether it is consumers, whether it is decomposers, right? So plants क्या है, producers है of course, animals consumers, fungi क्या है, decomposers, जो कि depends on और grown up on carbonic material, इसीलिए उसको decomposers कहते हैं। और फिफ्थ एंड लास्ट टॉपिक इज क्राइटेरिया इज phylogenetic relationship, मतलब external features हम we can say prokaryotes to eukaryotes और unicellular to multicellular। ओके, ये क्राइटेरिया समझ में आया। ये क्राइटेरिया लेके ही विटेकर साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया है। सो नाउ हम देखेंगे किंगडम फर्स्ट मोनेरा। किंगडम फर्स्ट मोनेरा, देखो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी गई है कि जो आपको क्या करना है कि जो कर्ड रहता है हमारे घर पे, दही, हाँ हम दही कहते हैं, टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ अ
कर्ड और बटर मिल्क ऑन दी स्लाइड। आपको कांच की जो पट्टी रहती है, आपके स्कूल में लैब होगा साइंस का, वहाँ पे आप कांच पट्टी आपके टीचर्स को बोलना कि हमें कांच पट्टी, अब जब भी लॉकडाउन खुलेगा और आपके जब क्लासेस शुरू होंगे रेगुलर, तब आपने ये करना है। अब क्या आपको क्या करना है, ग्लास स्लाइड लेना है, टेक अ ग्लास स्लाइड्स एंड टेक अ ड्रॉप ऑफ अ कर्ड ऑन इट एंड कीप अ कवर स्लिप। जहाँ छोटी सी कांच पट्टी आती है उसके ऊपर कवर स्लिप लगानी पड़ती है, और फिर आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप अंडर माइक्रोस्कोप आपको ऑब्जर्व करना है। अब जब आप अंडर माइक्रोस्कोप हाई पावर पे ऑब्जर्व करेंगे तो व्हाट डिड यू सी, you see moving small rod like a microbes, स्मॉल एंड रॉड लाइक अ माइक्रोब्स आपको दिखाई देंगे। तो वो क्या है, इट इज़ नथिंग बट द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इन शॉर्ट, मोनेरा में क्या रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बैक्टीरियाज के फोटोग्राफ्स यहाँ पे इमेज रखा दिया है। तो इसमें क्या आएंगे, मोनेरा में ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae विच प्रेजेंट इन अ मोनेरा। तो आपको समझ में आया कि मोनेरा में क्या रहता है, बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा। ये किंगडम फर्स्ट में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है मीन्स उसके एग्जाम्पल से। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आपको पता है मोनेरा किस में आता है, ऑफकोर्स प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स क्या है, यूनिसेलुलर है। तो आंखें बंद करके आपको बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। सेकेंड इज द मे बी इट इज़ ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, ये किसी के ऊपर डिपेंड भी रह सकते हैं या तो फिर ये खुद का खाना खुद भी बना सकते हैं। ओके, सो थर्ड टॉपिक इज दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स। मैंने पहले ही बताया कि ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं, तो इसलिए ये क्या करेंगे, इसमें ना तो न्यूक्लियस रहेगा ना तो फिर सेल ऑर्गेनल्स रहेगा, लेकिन ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट सेल्स है। तो हियर इट इज सम सारे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया मैंने यहाँ पे दिखाया है। ओके, नाउ किंगडम 2 प्रोटिस्टा। यहाँ पे भी आपको छोटी सी एक्टिविटी है कि क्या आपको क्या करना है, जो पॉन्ड वाटर रहता है, जो बाहर का गटर का पानी रहता है, उसमें से टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर ऑन ग्लास स्लाइड्स एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप with the high flower and low flower नहीं, power. So you can see what you can see, motile microbes with irregular shapes, मतलब जो मूवमेंट करते हुए शेप्स, अलग अलग इरेगुलर शेप्स आपको दिखाई देंगे। और आपको पता है हम बचपन से हम सीखते आए हैं कि जो भी इरेगुलर शेप का जो भी ऑर्गेनिज्म रहता है वो क्या है, वो है अमीबा, राइट। तो प्रोटिस्टा में क्या आते हैं, अमीबा जैसे माइक्रोब्स आते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इंक्लोज इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, एक प्रोटिस्टा ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब यूनिसेलुलर है, बट इसमें क्या है, विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, मतलब ये यूकैरियोट्स में आते हैं। तो दे हैव सूडोपोडिया और हेयर लाइक अ सिलिया और वीप लाइक अ फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। देखो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको यूग्लिना को, ये क्या है, ये है फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिला क्यों रहते हैं ये इन माइक्रोब्स को, फॉर मूवमेंट, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजिला के माध्यम से वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं फॉर लोकोमोशन यानी हाँ यस मूविंग करना। और ये तो फिर इसमें दो टाइप्स के रहते हैं माइक्रोब्स, ये तो फिर ऑटोट्रॉफ्स रहते हैं या तो फिर हेटरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स में कौन से आते हैं, ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं एउग्लिना, वॉल्वॉक्स, कंटेन क्लोरोफस। अब देखो ऑटोट्रॉफ्स में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यूग्लिना वॉल्वॉक्स ये क्या करते हैं,
दे मेक देयर ओन फूड मटेरियल। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है, एग्जैक्टली। और वही जो हेटरोट्रॉप्स है, कौन कौन है इसमें? अमीबा और पैरामीशियम। ये जो है, ये क्या है? ये दूसरों पर निर्भर है ना, खाने के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप्स। तो अमीबा और पैरामीशियम ये हेटरोट्रॉप्स में आते हैं। ऑटोट्रॉप्स में आते हैं यूग्लेना, वॉल्वॉक्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया? आगे जाए। ओके, नाउ किंगडम 3 इज फंजाई। देखो, यहाँ पे फंजाई में भी एक एक्टिविटी है। मैंने पहले ही बताया कि ब्रेड अगर मॉइस्चर रहा और 2-3 दिन अगर हो गए उसको, तो उसमें से वाइटिश कलर का आपको अगर ग्रोन अप दिखाई देता है, तो इट इज़ नथिंग बट द फंजाई। यस। अब वो क्या करना है? ब्रेड लेना है, या तो फिर हमारे घर पे जो भाकरी रहती है, या तो फिर रोटी, सिंपल रोटी। आपको 2-3 दिन ऐसी डब्बा बंद करके डिब्बे में ऐसे रख देना, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है उस रोटी पे या फिर ब्रेड पे। तो आपको 4-5 दिन के, या फिर 2-3 दिन के बाद ही उसमें आपने अगर देखा, तो आपको उसके सरफेस पे क्या दिखाई देगा? थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर आपको उसमें दिखाई देगा। तो ये क्या है? इट इज़ द कॉटन थ्रेड लाइक अ दिखाई देता है आपको सरफेस ऑफ द ब्रेड। सो आपको क्या करना है? आपको भी ग्लास स्लाइड लेना है। ग्लास स्लाइड पे वो कॉटन थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, वो लेना है। उस पर आपको थोड़ा सा पानी डालना है ग्लास स्लाइड पर, या तो ड्रॉप ऑफ वाटर डालो, या तो फिर ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन डालो स्लाइड पर, और उसके बाद वो थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर ले लो। कीप अ कवर स्लिप एंड देन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। व्हाट डिड यू सी? ऑफ कोर्स, आप अगर देखेंगे तो आपको इस टाइप के फंजाई ग्रोन अप होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दीज आर नॉन ग्रीन्स यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। देखो, ये नॉन ग्रीन है। नॉन ग्रीन यानी क्लोरोफिल एब्सेंट है। क्लोरोफिल एब्सेंट यानी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं। ये यूकैरियोटिक है, मतलब सेल न्यूक्लियस भी है, सेल ऑर्गेनल्स भी है। हेटरोट्रॉफिक है, विच इज डिपेंड ऑन अनदर फॉर फूड मटेरियल। ओके, सेकेंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ देम आर सेट्रोट्रॉफ्स। दे ग्रोन अप अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब आपको पता है, मैंने पहले ही बताया कि कुछ फंगाई, बहुत सारे फंगाई सेप्रोट्रॉफ है। क्योंकि वो क्या करते हैं? सेप्रोट्रॉफ क्या है कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल पे, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे ग्रोन अप होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज द देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। और देखो, उसका जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा टफ है, और वो किससे बना हुआ है? कॉम्प्लेक्स शुगर से। और उसको क्या कहते हैं? चिटिन। उसको क्या कहते हैं? चिटिन। ये ख्याल में रखना बेटा। क्या है ये जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल, इसका जो फंजाई का सेल वॉल जो रहता है वो बहुत टफ रहता है, कॉम्प्लेक्स शुगर का बना रहता है, और उसको हम क्या कहते हैं? चिटिन कहते हैं। और सम फंजाई आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लिया आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। बहुत सारे फंजाई एक ऐसे थ्रेड लाइक है, और बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल, बेकर सीड्स, एस्परजिलस, फंगस ऑन कॉर्न, पेनिसिलियम, देन मशरूम। देखो, बेकर सीड्स, जो बेक करने के लिए जो ईस्ट रहता है ना, वो भी एक फंजाई है। एस्परजिलस मतलब जो कॉर्न रहता है ना, हम खाते भुट्टा उसको कहते हैं, तो उसके जो कोने में रहता है ना कॉर्न के, तो वहाँ पे अगर आपने देखा तो वहाँ पे ऐसे वाइटिश कलर दिखाई देता है, तो वो क्या है? इट इज़ नथिंग बट ऑल्सो फंजाई। तो आप अगर वो लेके अगर आपने देखा, सॉरी, अगर आपने उसको लेके स्लाइड पे लेके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। सो एग्जाम्पल्स क्या है? बेकर सीस्ट, एस्परजिलस, और जो पेनिसिलियम है वो मेडिसिन में यूज़ होता है। मशरूम, जो मैंने कहा है कि कचरा कूड़े के पास ग्रोन अप होता है, राइट। तो यहाँ पे हो गया फंजाई का। तो यहाँ पे मैंने आपके 3 किंगडम डिस्क्राइब किए हैं, और आगे के
आपको अगर चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें. Here we completed part 1 of a living world and classification of microbes. Thank you. If you want more videos, please like, share and subscribe with click on bell icon. Thank you.